Hello friends. Welcome back again on the Consistency in Silence YouTube channel. In today's class, we will be starting our new topic of temperature. So now, what is the simple definition of temperature? It is the form of sensible heat. The amount of heat that can be sensed by our body parts, that is sensible heat. It is known as temperature. Now we will discuss the three parts. There are three subparts to this. The first is the horizontal distribution. The second is the vertical distribution, and the last one, the factors affecting the temperature. So without any further ado, let's jump straight to today's topic. So सबसे पहले हम फैक्टर्स ही देख लेते हैं. What are the factors? And the last one is, so these are all the factors responsible for the variation in the temperature. The first one is the latitude. What is the latitude? We have discussed in the previous sections. Latitudinal variation in the temperature is such that if one goes from equator towards the pole, then the temperature will decrease. So this was a general pattern seen all over the globe. But there's a exception in this particular case. The maximum temperature is measured at the tropics and not at the equator. So the general trend, the general pattern that we have seen is, if one starts from the equator and goes towards the pole, the temperature will decrease. It means the temperature at the equator is highest and the temperature at the poles are lowest. So this part is correct at the poles, but we are not seeing the highest temperature at equator, but we are witnessing the highest temperature at both the tropics. The latitudes between 25 to 35 degree north and 25 to 35 degree south. It means in the regions of Tropic of Cancer in north and Tropic of Capricorn in south. So what is the reason behind it? देखिए, the first reason is at equator we have the rainfall throughout the year, hence there's a decrease in temperature. And second of all, why it is raining? Yes, there's a cloud cover. It means the clouds will stop the penetration of the sunlight from reaching the ground, and hence again the temperature will decrease. Hence we are having less temperature, comparatively less temperature at the equator if we compare it with the tropics. Tropics में one of the highest temperature we are witnessing, but in the winds part we will study, they are still called the subtropical high pressure zones. So this is a dichotomy. If we have the very high temperature, then there should be low pressure. अगर temperature high है तो pressure low होना चाहिए. And if we have the low temperature, we should have the high pressure. But this dichotomy that we are witnessing in the tropical region, ये हम पढ़ेंगे winds part में. तो आप यहाँ बस इतनी सी लाइन लिख लेना कि we will witness the highest temperatures not at the equator because of the ब्रैकेट में इक्वेटर में क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड द क्लाउड कवर, फिर ब्रैकेट क्लोज, बट इन द ट्रॉपिक्स बिटवीन 25 टू 35 डिग्री नॉर्थ, 25 टू 35 डिग्री साउथ. और फिर वापस एक ब्रैकेट डालना, यहाँ लिखना सी द टॉपिक्स ऑफ विंड्स, और उसके आगे लिख लेना कॉलन डाल के, येट दीज आर नोन एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स. तो ये हम प्रेशर बेल्ट्स में पढ़ेंगे विंड्स में.
So this was all regarding the latitudinal variation. The altitude, now in the previous section सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं ज्योग्राफी में टिल वी कंप्लीट द कोर्स ऑफ ज्योग्राफी. आल्टीट्यूड वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस सेक्शन. वो क्या था? नॉर्मल लैप्स रेट और एनवायरमेंटल लैप्स रेट. 6.5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर इफ़ वी असेंड टू एवरी 1 किलोमीटर. सो वो 1 किलोमीटर था, या अगर इसको मीटर में देखना है तो 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप एट एवरी 165 मीटर्स. तो दोनों एनवायरमेंटल लैप्स रेट या नॉर्मल लैप्स रेट बोले जाते हैं. सो इफ़ वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर देयर इज अ डिक्रीज इन द टेम्परेचर. कौन से रेट पे? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. Now why there is a decrease in temperature? तो कल मैंने एक चीज़ आपको बता दी थी. क्या? Because the atmosphere gets heated through the long wave radiation of the earth. There are various mechanisms of this heating, like first of all the radiation, second of all the conduction process, third of all the advection. Advection means the horizontal movement of air which we called winds, so that is advection. And the convection, the vertical movement of air known as air currents, तो इनको बोलते हैं convection. Understood? So these are all the mechanisms of transferring of heat in the atmosphere. So we are discussing altitude parts, and in the altitude we are discussing that why this vertical variation of temperature is happening. So first point, I have told you in previous class that the major source of heating of atmosphere is the Earth's long wave radiation. So then, thus if you go to a particular height, that is beyond the source of the heating. Source of heating क्या है? Our Earth. If we go to a distance from this heat source, thus we will feel cold. तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा कि वाई, मतलब पॉइंट तो क्या हो जाएगा? दिस इज वी आर प्रूविंग दैट यस कि अर्थ ही हीट सोर्स है. तो पहली बात होता है कि ऊपर जो वेरिएशन आ रही है टेम्परेचर में, यहाँ हॉट है यहाँ कोल्ड है, ऐसा क्यों है? फर्स्ट पॉइंट है कि वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द हीट सोर्स, दैट इज अर्थ. द सेकेंड पॉइंट आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, 50% of the water vapor, that is a major GHG, greenhouse gas, is up to the height of 2.5 किलोमीटर of the atmosphere. तो मेजर GHG वाटर वेपर जब इतना नीचे ही प्रेजेंट है तो हीट क्या होगा? ऑफ कोर्स नीचे वाला. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, एज वी गो इनटू द फर्दर आल्टीट्यूड्स, देन देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि मेजर GHG जो वाटर वेपर है वो तो 2.5 या 2.9 किलोमीटर तक ही सीमित है, 50%. द थर्ड थिंग इज इन रिलेशन विद द सेकंड पॉइंट. The density of air molecules are less in the upper atmosphere, जैसे जैसे हम altitude में ऊपर जा रहे हैं, and hence these mechanisms, conduction, radiation, convection, advection, these will start decreasing. Why? Because the air density is itself less, and hence we don't have the greater temperatures at the higher altitude. So this is the third point. And the last point, which is anthropogenic in nature, that we, the people, via major release of greenhouse gases, the factors like urbanization, like industrialization, we have created a heat dome at the near surface of the earth, and hence there is an increase in temperature at the near zone of the earth's crust, and we find cool temperatures at the higher altitude. So these are the four main reasons that we can prove yes, the temperature will decrease as we go up in the altitude. The UPSC can twist this applicability of knowledge. मैंने आपको क्या बताया कि भाई altitude में वेरिएशन कैसे आ रहा है, उसके फैक्टर्स क्या क्या है. UPSC ट्विस्ट कैसे करेगा? We have Mount Kilimanjaro. कहाँ है Mount Kilimanjaro? In तंजानिया, अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में. माउंट किलीमंजारो although is situated in at equatorial region but still has ice caps. Why? तो ये हम क्यों बताएंगे, कैसे बताएंगे? With altitude the temperature will start decreasing.
as the height of Mount Kilimanjaro is so high, hence there is a reduction of GHG, that is water vapor. Density is low. The top of the Kilimanjaro is at a distance from the heat source, that is earth. So these three will be the reason why, although the Mount Kilimanjaro is situated at the tropics, still possess the ice caps. और जो हमारे हिमालयाज है वो भी कौन सा है, वो भी काइंड ऑफ ट्रॉपिकल जोन में, स्टिल दे हैव द आइस कैप्स. तो उसका रीज़न यही चीज़ें होंगी. सो दिस इज द इनडायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर knowledge. Distance from the sea, we will study two things: continentality effect and maritime effect. You see, the regions which will lie in the interior of continents, they will experience very large variation in the annual temperature as well as diurnal temperature. इट मीन्स जो डे टू डे टेम्परेचर होगा, एक दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर लोवेस्ट टेम्परेचर कितना होगा, इसको बोलेंगे डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर. एक साल में लोवेस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होगा, इसको बोलेंगे एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर. द रीजन्स which lie inside on the interior side of the continents will have the very high variation in their annual as well as diurnal range of the temperature. Why? Because of this effect, continentality effect. If we have the huge portion of land mass, अगर इसमें इतनी सनरेज आ रही हैं कि वो टेम्परेचर राइज कर दे 30 डिग्री सेल्सियस तक, तो ड्यू टू दिस कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट, एज दिस रीजन इज लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ये जो 30 डिग्री राइज है ना, ये 40 डिग्री राइज कर देगा. उतनी ही रेज पर टेम्परेचर राइज 40 डिग्री. सो दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट. नाउ अ रीजन इज सिचुएटेड एट द कोस्ट. अगर कोस्ट पे सिचुएटेड है, सो हमको कुछ तो चीज़ें कॉमन सेंस से पता ही है: लैंड एंड सी ब्रीजेस एंड द विसिनिटी ऑफ द ओशन, लेक एंड सराउंडिंग्स. सो अगेन वही एग्जांपल, रेज आ रही हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट की, डेट विल टेंड टू इंक्रीज द टेम्परेचर टिल 30 डिग्री सेल्सियस. बट ड्यू टू दिस मैरीटाइम इफेक्ट एंड द विसिनिटी ऑफ ओशन एंड लैंड एंड सी ब्रीज, सो वही अमाउंट की इंसोलेशन 30 डिग्री ना राइज करके 25 डिग्री राइज कर पाएंगे. इट मीन्स कॉन्टिनेंटलिटी इज द सिवियरिंग इफेक्ट. It will severe the normal conditions. Mind you, severity effect, मैंने आपको बस पॉजिटिव बताया टेम्परेचर का, 30 डिग्री को 40 डिग्री कर देगा. बट डिजर्ट्स, लद्दाख, अगर -10 डिग्री है तो उसको 0 डिग्री नहीं करेगा, -30 कर देगा. जो भी कंडीशन है उसको सीवियरिंग कर देगा, सीवियर कर देगा, और ज़्यादा हार्श कर देगा. सो वार्म को और वार्म, कोल्ड को ऑल कोल्ड. कहाँ होंगे? द रीजन्स विच आर सिचुएटेड एट द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, दे विल एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट. मैरीटाइम इफेक्ट, इट विल मॉडरेट, मॉडरेटिंग इफेक्ट, इट विल मॉडरेट द क्लाइमेट. तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड जाएंगे. अगर इंसोलेशन इतनी पावरफुल है कि 30 डिग्री राइज कर दे टेम्परेचर को, तो 20 डिग्री कर पाएगी. और अगर ठंड इतनी ज़्यादा है कि वो -30 डिग्री पहुंचा देगी, तो ये -20 डिग्री पहुंचाने देगी बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इफेक्ट. सो दिस वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी विल टेम्पर द टेम्परेचर. नेचर ऑफ लैंड एंड सी. लैंड, ड्यू टू इट्स ओपेसिटी एंड रिजिडिटी, विल टेंड टू हीट अप फास्टर एंड टेंड टू कूल डाउन फास्टर. जल्दी से हीट अब्जॉर्व कर लेगा, वार्म अप हो जाएगा, जल्दी से हीट छोड़ देगा, एट द नाइट कूल हो जाएगा. वेयर एज ओशियन ऐसा नहीं करेगा. इट विल टेक अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू हीट अप, एंड यही वाइस वर्सा, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू कूल डाउन. तो ये है ओशियंस की खासियत. वाई? बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हैपनिंग in the oceans via the surface warm water current.
this is ocean. Surface, warm water, current, and subsurface, cold water current. So due to this mixability of the two currents, there is a temperature distribution taking place, and hence the ocean will take more time to heat up and more time to cool down. Understood? So this is yet another feature of the temperature variation. क्या बोला मैंने? लैंड जल्दी वार्म अप होगा, जल्दी कूल डाउन होगा, सो इट इज़ अफेक्टिंग द टेम्परेचर. द सरफेस इज अफेक्टिंग द टेम्परेचर. ओशन सरफेस जल्दी वार्म अप नहीं होगा, जल्दी कूल डाउन नहीं होगा. स्टेबिलिटी, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर कौन से टर्म में मेजर करी जाती है भाई? इफ़ यू हैव थंडरस्टॉर्म्स, यू हैव रेनफॉल्स, मॉनसूनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, अगर ये सारी रेनफॉल है और देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर, देन इट इज़ नोन एज इनस्टेबल कंडीशंस. लाइक इंडियन मानसून्स कब आते हैं? समर्स के टाइम में आते हैं. सो तब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब बारिश गिर जाएगी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा. विंटर्स में देखिए, विंटर्स आर स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. क्यों? ना बारिश होती ना कुछ होती है. कहाँ? इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात कर रहा हूँ मैं. सो दस विंटर प्रमोट्स एरिडिटी. सो दिस वाज रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी. द लास्ट इज द ओशन करंट्स. थोड़ी तो मैंने चीज़ें आपको बताई दी है कि सब सरफेस होता है कोल्ड करंट, ऊपर का जो सरफेस करंट होता है उसको बोलते हैं वार्म करंट. नेक्स्ट चीज़ें हम पढ़ेंगे ओशंस के चैप्टर में, और ओशंस में भी हम ओशन करंट्स में पढ़ेंगे. वो बहुत बाद में चैप्टर आने वाला है, उससे पहले तो हम बहुत कुछ कवर करेंगे. थोड़ी चीज़ें, एक बार मैप एटलस खोल लीजिए, थोड़ी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा. इफ़ यू सी द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, सो यू सी द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़ गुजरात, बट वेस्टर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया अगर आप ध्यान से देखेंगे डेट इज़ मुंबई. तो ये नोट कर लीजिए. द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश, बट द ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल किसकी है? उसके नीचे वाले स्टेट की, नागालैंड की, कोहिमा है ना, शायद से देख लेना. द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, दिल्ली एंड बेंगलोर इज ऑन सेम लॉन्गिट्यूड. ये भी आपको पता है. पिछली क्लास में मैंने आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ कहाँ से पास हो रहा था बताया था. यूपी से, एमपी से, देन झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड देख लेना है नहीं, उड़ीसा से एंड आंध्र प्रदेश से. तो यहाँ से हो रहा था. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को काटता है, तो वो कौन कौन से स्टेट से पास होता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल. अब कौन सा बच गया? त्रिपुरा एंड मिजोरम. सो ये 8 स्टेट्स हैं. These two lines, the Tropic of Cancer 23.5 degree north and the international date line 82.5 degree longitude east, ये दोनों काटते हैं. कौन से स्टेट में काटते हैं देखना एक बार. तो ये याद रखिए, छत्तीसगढ़ में दे विल क्रॉस ईच अदर. और अपना आइडियल कहाँ से पास होता है? इंडियन डेट लाइन मिर्ज़ापुर यूपी से. तो आई थिंक इतना ही मुझे बताना था. कुछ और बच गया क्या? नहीं, बस इतना ही बताना था. अगली क्लास में वी विल स्टडी द टेम्परेचर इन्वर्जन विच इज सब टॉपिक इन द टेम्परेचर. टिल देन इफ योर concepts are getting clear, please like this video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.